as you would expect, वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी समीक्षा, इसके ऊपर ओवरसाइट, इसके ऊपर इंटरनल डिस्कशंस ऑन अ डेली बेसिस होती हैं. The Government of India teams have been watching the entire implementation of the vaccination program, and particularly in this phase, because this was shift from the way we were doing things up to a point and then moved into a different model. So this was constantly being done, and the reviews were taken at the highest level by the Honorable Prime Minister on the 15th and the 21st of May. But even prior to that, continuously the situation was being watched, connect with states was there. लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 15 और 21 को रिव्यू लिया, उसके बेस के ऊपर उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि इस पॉलिसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए जो बदलाव की ज़रूरत है गाइडलाइंस में, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए. बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आगे कैसे बढ़ना है और ये जो रिक्वेस्ट साथ साथ आ रही हैं उनको लेके आगे क्या बदलाव लाना है, वो एक डायरेक्शन हमें दिया गया. और उस डायरेक्शन के बाद टीम्स रीच्ड आउट टू amongst us, did more analysis, got feedback from the manufacturers, spoke to the states in a systematic way and to see what is the best way forward. We also looked at the practices across the globe at the same time. And then, as you know, the Honorable Prime Minister addressed the nation yesterday and provided us details of the new guidelines in relation to the vaccination program. And we will talk about them, and these have been issued today, this morning, and you may have seen the document. The point remains that मई के महीने की व्यवस्था को पूरी तरह से नज़र पे रखा गया, उसके फ्लो में को देखा गया, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझा गया, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई. लेकिन लगा कि अब हमें बैक टू सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा और उसके भीतर ही स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन में होगी उसको चिन्हित किया जाएगा. सो अंडर द न्यू गाइडलाइंस, एज यू आर अवेयर, the Government of India will procure 75% of the vaccines being manufactured in India. जो भारत की धरती पर वैक्सीन बन रहे हैं उनका 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, और ये सारा स्टेट्स को फ्री दिया जाएगा. इसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी और इनको आगे फ्री एलिजिबल पॉपुलेशन तक मिलेगा through the government vaccination centers in various states, districts, towns, and villages. So free access to vaccine to the people of India, supplied free to the state government, procured nationally by the union government to the tune of total 75% of the total production. States को कैसे allocation होगी? Naturally on the basis of population, also on the basis of the pandemic situation in that population, उसको भी नज़र में रखा जाएगा ज़रूरत को, और साथ साथ कितनी तेज़ गति से, कितने सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा जा रहा है उसको भी नज़र में रखा जाएगा कि इस्तेमाल भी हो सके जो वैक्सीन अलॉट हो रहे हैं, और जिस तरह से वैक्सीन आगे तक जाना चाहिए वो ठीक तरह से पहुँचे, और ये भी देखा जाए कि वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो कम हो और कम वैक्सीन की वेस्टेज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन अ स्मॉल वे. व्हाट इज द प्रायोरिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी रिमेन कमिटेड to the uptake of the vaccine by healthcare workers. There is still unfinished agenda, and we believe it is of highest priority. As the Honorable Prime Minister yesterday reminded us, imagine if an overwhelming proportion of healthcare workers, doctors, nurses, paramedics, ambulance drivers, other team members of the healthcare teams, and also frontline workers, had not received the vaccine, the consequences would have been disastrous. Confidence कितना होता उस दशा में? वैक्सीन मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक
कोरोना के वार्ड में जा सकते हो, जहाँ पे 25 मरीज छोटे से स्पेस में लुक आफ्टर किए जा रहे हैं। सो ये बहुत हैंडी हुआ है। देयरफॉर वी बिलीव हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड देयर सेकेंड डोज इज अ प्रायोरिटी। Clearly, citizens above the age of 45 remain a priority, and we have highlighted this from this podium several times. We have said that overwhelming mortality occurs in this group. If we address the immunization of this group, we are able to knock off the mortality in a very, very big way, over 80%. So this remains a priority because they are most vulnerable. They must be protected. This is our first goal of mitigating the effects of the pandemic. Then जिन व्यक्तियों की दूसरी डोज दी हो गई है, that clearly is a priority, तो उसको नज़र में रखा जाएगा। फिर ये समझ आती है कि अब क्योंकि ये वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर सब के लिए खुल गया है, उस ग्रुप में भी हमने तरक्की करनी है, उसको भी बढ़ाना है। एंड एज यू हैव सीन फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, the uptake of other categories varies, and uptake of those categories needs to be pushed. And once you are doing that, please also then include citizens 18 years to 45 years. Next one, please. Within the prioritization group of above 18, states have the flexibility to sub-prioritize in their own way. और ये उनसे हम बातचीत करेंगे। स्टेट की अपनी प्रायोरिटी हो सकती है कि इस ग्रुप में वो किसी पर्टिकुलर समूह को इंक्लूड करना चाहें, ये उनके ऊपर, ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास रहेगी, एंड वी वैल्यू दैट। इसके अलावा हम एडवांस इंफॉर्मेशन देंगे स्टेट्स को वैक्सीन की सप्लाईज का, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कम से कम 1 महीने की सप्लाईज उनके सामने विजिबल हों ताकि वो अच्छी प्लानिंग कर सकें। एंड विद टाइम even longer visibility आगे प्रस्तुत की जाएगी as the vaccine supplies improve। इसी प्रकार जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेट्स की तरफ से डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स में और वैक्सीनेशन सेंटर्स तक स्पेसिफिकली कितना कितना पहुंच सक जाएगा अगले कुछ दिनों में, ये भी दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा, और इसमें हम स्टेट्स की मदद मांगेंगे। इसके अलावा एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे देश के, 25% जो बच गया है उनका मैन्युफैक्चरिंग का अप टू 25%, वो प्राइवेट मार्केट में उसको बेचेंगे, और दिस विल बी द टोटल प्रोडक्शन का 25%। 75 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, स्टेट्स को कुछ प्रोक्योर नहीं करना है, प्राइवेट में 25% जाएगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट होगा, और वहाँ से टीके फिर आगे लगेंगे। इम्पॉर्टेंटली एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो ये है कि स्टेट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को एग्रीगेट करेंगे। हमने ये देखा है कि अभी जो व्यवस्था रही उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व ज़रूर हुआ, जिम्मेवारी भी निभाई काफ़ी हद तक, लेकिन टोटल नंबर जितने वो साइट्स पे कर रहे थे वो नीचे आ गया। चलो ये भी हम कह सकते हैं कि अभी पिकअप हो रहा था, लेकिन ज्योग्राफिकली वो कुछ ज्योग्राफीज में ज़्यादा था, कई बिल्कुल छूट गए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जहाँ जैसा भी प्राइवेट सेक्टर है, और पर्टिकुलरली वी आर वेरी कीन दैट प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज इन स्मॉल टाउन्स शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव। इट कैनॉट बी ओनली लिमिटेड टू मेट्रो एंड लार्ज सिटीज, नो वे। वहाँ भी भागीदारी हमें उनकी चाहिए, वो जनता के पास हैं, व्यक्ति को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये ऑप्शन जो अफोर्ड करके जाना चाहते हैं, फ्री वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उनको ओपन है, अपनी मर्जी से वहाँ जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक स्टेट में 3 शहरों में ही ये चीज़ इस रास्ते से उपलब्ध हो रही है, नो वे। सो एग्रीगेशन से कहने का तात्पर्य ये है कि स्टेट देखेगी कि मेरे पास इतना नेटवर्क अवेलेबल है फैसिलिटीज़ का, ये सारे कोविन पे चिन्हित हैं, और उनकी तरफ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बढ़ाने के लिए इतनी डोजेस मिलनी चाहिए, फिर वो आगे इसको पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ ये डिमांड सेंटर को देंगे, और सेंटर फिर इनको इकट्ठा करके परचेज करा के उपलब्ध करवाएगा। वैक्सीन की जो है प्राइस, वो प्राइवेट में जो जाएगा वो पहले से ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को डिक्लेयर करेंगे, जैसा अभी भी हो रहा है।
और ये भी एक साफ कर दिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपना सर्विस चार्ज लिमिट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 600 रुपये का वैक्सीन है उसके ऊपर 1600 रुपये और लगाएं या 4000 रुपये और लगाएं। सर्विस चार्जेस आर नाउ फिक्स्ड एट ₹150। इससे पहले ये 100 था, आपको मालूम है, एक फेज़ में, और हमें लगा कि ये इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें लगा कि ये सर्विस चार्ज का इंसेंटिव मिलते ही हमारे साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स जुड़ेंगे, हज़ारों में जुड़ेंगे। पहले भी हमने देखा 7, 8, 9 हज़ार हॉस्पिटल जुड़े थे और अभी 2000 के करीब ही रह गए हैं। लेकिन ये 9,000 नहीं रह सकते। भारत में कम से कम 25-30 हज़ार प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और हमें उम्मीद है कि इस इंसेंटिव से और उनकी पैट्रियोटिक भावना से कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने हर ज़िले में, हर शहर में, हर कस्बे में लेके जाना है, तो हमें उम्मीद है कि ये इंसेंटिव उस तरफ इसका काम करेगा। कोई भी सिटीज़न, कोई भी नागरिक फ्री वैक्सीन का अधिकारी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी से फ्री वैक्सीन का अधिकारी है, कोई क्राइटेरिया और नहीं है। और जिनको पे करने की एबिलिटी है, अपनी चॉइस से वो प्राइवेट हॉस्पिटल की आउटलेट से ये वैक्सीन ले सकते हैं। और एक और नई चीज़ लाई गई है, वो लोक कल्याण की परिप्रेक्ष्य में है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को मदद करके वैक्सीन उपलब्धता देना चाहता हूं प्राइवेट सेक्टर में, तो एक ई-वाउचर अवेलेबल हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल। इस व्यक्ति के लिए मैं खरीद रहा हूं ये वाउचर, उस वाउचर को लेके वो व्यक्ति प्राइवेट बुकिंग करके प्राइवेट में वॉक इन करके अपना वैक्सीन ले सकता है। तो इससे एक भावना बढ़ेगी कि हम दूसरों की मदद करने के लिए एक रास्ता, सिस्टमेटिक रास्ता जो है वो सामने खुलेगा। तो ये भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स कैन बी प्री बुक्ड और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, और समूहों की रजिस्ट्रेशन जो अब और भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी जब हमने पेरीफ्री पे जाना है, पेरी अर्बन एरियाज में जाना है, कि बहुत लार्ज नंबर में आगे आएँ, ऑन साइट आएँ, उनकी मदद करके उनको रजिस्टर करें और उनको वैक्सीन लगें। ये प्रावधान पहले से भी था, उसको हम सिर्फ एम्फेसाइज कर रहे हैं इस तरह से। इसी प्रकार कॉमन सर्विस सेंटर्स, कॉल सेंटर्स का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनकरेज करेंगे कि कॉल सेंटर्स हो जहाँ पे कि मदद करके अपॉइंटमेंट के साथ जोड़ा जाए, गाइड करा जाए कि कहाँ आप जाके अपना टीका लगा सकते हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं 21 जून को लागू हो जाएंगी सारे देश में। नेक्स्ट।